ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ رات 10 بجے کا وقت تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی پینٹنگ بنا رہی تھی جب اسے باہر سے رانی کی آواز سنائی دی۔ چھوٹی بی بی صاحبہ جلدی سے آ جائیں، چھوٹے صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں آرام کر رہی ہوں، صبح اٹھ کر ان سے مل لوں گی۔ اس نے جلدی سے بہانہ بنایا تھا اور اپنی توجہ پھر سے اپنی پینٹنگ کی طرف مبذول کر دی تھی۔ یہ اس کا پسندیدہ کام تھا۔ وہ جب بھی شہر سے واپس گاؤں آتی تو اپنا یہی شوق پورا کرتی تھی۔ وہ حویلی کے لوگوں سے بہت کم ملتے جلتی تھی، بہت کم ان میں اٹھتی بیٹھتی۔ نہ تو وہ ان لوگوں کو پسند کرتی تھی اور نہ ہی حویلی کا کوئی شخص اسے پسند کرتا تھا، مگر صرف اور صرف اسے قبول کرنے کے لیے مجبور تھے۔ تھوڑی سی دیر کے بعد دروازہ کھلا، مگر وہ اپنی پینٹنگ میں اس قدر مگن تھی کہ اسے دروازہ کھلنے کی آواز ہی سنائی نہ دی۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اسے تھوڑے ہی فاصلے پر رک گیا اور اس کی پشت کو گھورنے لگا۔ مجھے یہاں پر آئے تقریباً 8 گھنٹے گزر گئے ہیں، مگر تم مجھے سلام کرنے کے لیے نہیں آئی۔ کیا میں اس کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ یہ آواز تو وہ لاکھوں میں پہچان سکتی تھی، اور اسی آواز سے تو اس کی دل کی دھڑکنیں منتشر ہو جاتی تھی۔ وہ اپنی جگہ پر جم سی گئی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ کسی قسم کی کوئی حرکت کرتی۔ حاکم خان نے اس کا برش پکڑا ہوا ہاتھ پکڑا اور سامنے بنی تصویر میں پھیرنے لگا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور جلدی سے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑا تھا۔ رامین کا وجود خوف سے ایک بار پھر سے کانپ رہا تھا۔ ماضی کے لمحات اس کی نظروں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ یہ وہی ظالم انسان تھا جو اس معصوم پر ظلم ڈھا کر پاکستان سے چلا گیا تھا، اور اب 5 سالوں بعد وہ پھر سے واپس آیا تھا۔ نہ جانے وہ رامین سے کیا چاہتا تھا۔ کیا وہ پھر سے وہی؟ اس کے بعد وہ کچھ سوچ نہیں سکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آر یو اوکے؟ اس کی حالت کو دیکھ کر حاکم خان نے اس سے سوال کیا تو وہ زور سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، پلیز نہیں، خدا کے لیے یہاں سے چلے جائیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی تھی۔ اس کی چیخوں کی آواز سن کر رانی جلدی سے کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ چھوٹی بی بی صاحبہ، کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ اس کے قابو میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ حاکم خان نے ایک نظر اس کو دیکھا، گہری سانس لی اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے باہر نکلتے ہی وہ بھی ٹھیک ہو گئی۔ وہ اس وقت رانی کے گلے لگے زور زور سے رو رہی تھی اور اسے کہہ رہی تھی، اس انسان سے مجھے شدید نفرت ہے، اس سے کہو یہ میرے سامنے نہ آیا کرے۔ بی بی صاحبہ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ ان کے نکاح میں ہیں، وہ آپ کے شوہر ہیں، آپ پر حق رکھتے ہیں، کیسے آپ سے دور رہ سکتے ہیں؟ اگر آپ ایسا کہیں بھی تو کوئی آپ کی بات مانے گا نہیں۔ مگر اس انسان ماضی میں، اس نے بولنا چاہا تھا، مگر رانی نے اسے ایک بار پھر سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا اسے بھول جائیں۔ مجھے لگتا ہے وہ آپ سے محبت کرنے لگے ہیں۔ نہیں، وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، وہ کسی سے بھی محبت نہیں کر سکتا۔ اسے صرف اور صرف اپنی ذات سے عشق ہے، جس کے سامنے وہ کسی کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ تو بہتر ہے تم بھی اس غلط فہمی سے نکل آؤ۔ رامی نے اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتے جیسے رانی کو سمجھانا چاہا تھا۔ کیا آپ ساری زندگی ایسے ہی رہیں گی؟ رانی کے دل میں نہ جانے کیا آیا، اس نے یہ سوال کر دیا۔ کیا آپ ساری زندگی اپنے شوہر سے نفرت کرتی رہیں گی؟ مجھے اس بارے میں نہیں پتا، اور نہ ہی میں اس بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ تم پلیز یہاں سے چلی جاؤ، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ وہاں سے اٹھ کر اپنے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ اس کی رانی کی طرف پشت تھی، جس کی وجہ سے وہ اس کے چہرے کو نہیں دیکھ پا رہی تھی، مگر وہ آنکھیں بند کر کے یہ بات کہہ سکتی تھی کہ اس کی بی بی صاحبہ پھر سے آنسو بہا رہی تھی۔ حاکم خان اس وقت اپنے کمرے میں کھڑا تھا۔ وہ زور زور سے ساری چیزیں زمین پر پھینک رہا تھا۔ اس نے سارے پرفیومز دیوار پر مار کر توڑ دیے تھے۔ آخر وہ لڑکی خود کو سمجھتی کیا ہے؟ اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی اس طرح کا برتاؤ کرنے کی؟ اسے ایک لمحے کے لیے بھی صبر نہیں آ رہا تھا۔ میں اس کا شوہر ہوں، میں اس پر حق رکھتا ہوں،
और आइंदा कभी भी उसका ये लहजा बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसने जैसे खुद से वादा किया था या खुद को तसल्ली देने की कोशिश की थी, ये बात तो वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था। वो पूरी रात उसने जागते हुए और सिगरेट फूंकते गुजार दी थी। आज पाकिस्तान में आए हो से पहला ही दिन था और पहले ही दिन उसका मूड बुरी तरह खराब हो गया था। सुबह जब वो नाश्ता करने के लिए टेबल पर गया तो वो वहां पर भी मौजूद नहीं थी। अपनी छोटी बीबी को बुला कर लाओ, उन्हें कहो कि वो 5 मिनट के अंदर अंदर टेबल पर पहुंचे। उसने रानी को एक नया हुक्म सादिर किया। आमना बेगम को बेटे की ये बात पसंद नहीं आई थी। वो मुंह बनाते कहने लगी, आखिर क्या जरूरत है इस नहुसत की पोटली को यहां पर लाने की? उसको कमरे में ही रहने दो। अम्मी जान, वो मेरी बीवी है। बड़ी जल्दी याद आ गया तुम्हें। उस वक्त याद क्यों नहीं आया जब तुम उसे छोड़ कर गए थे? उन्होंने जैसे अपने बेटे को कुछ याद दिलाने की कोशिश की। वो अपनी मां से नजरें चुराते कहने लगा, आप अच्छी तरीके से जानती हैं कि मैं तालीम हासिल करने बाहर गया था, तो तुम उसे अपने भी साथ ले जाते। तुम्हें हम लोगों ने कितना समझाया था। तो अब क्या हो गया? कौन सी कयामत आ गई जो आप लोग इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप लोग इसी तरह से सवाल जवाब करते रहे तो मैं ये मुल्क छोड़कर बहुत जल्दी वापस चला जाऊंगा। बेटे की बात सुनकर सिकंदर साहब परेशान हो गए। खबरदार जो तुमने इस तरह का कोई फैसला लिया, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें पाकिस्तान वापस मैंने ही बुलाया था ताकि अब ये सरदारी तुम्हारे हवाले करूं। इलेक्शन भी सर पर हैं, उन्हें भी अब तुमने ही देखना है, क्योंकि मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं कि मैं ये सारी जिम्मेदारियां देख सकूं। मैं तो बूढ़ा हो गया हूं। उन्होंने जैसे अपने कंधे से सारी जिम्मेदारी उतारकर अपने बेटे के कंधे पर डाल दी थी। साहब जी, बेगम साहिबा कह रही हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं। इससे पहले रानी मजीद कुछ कहती, वो अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और लंबे लंबे डग भरता उसके कमरे में पहुंच गया। दरवाज़ा खुला हुआ था। वो दस्तक दिए बगैर अंदर दाखिल हुआ, जहां पर वो दुनिया जहान से बेगाना होकर बेड पर लेटी थी। वो इस वक्त नाइट ड्रेस में मलबूस थी, जहां से उसका हुस्न वाज़ेह हो रहा था। एक लम्हे के लिए तो वो अपनी जगह पर मबहूत रह गया, मगर अगले ही लम्हे खुद को दोबारा काबू किया। तुम खुद को समझती क्या हो? वो फिर से हलक के बल चिल्लाया। उसकी आवाज़ सुनकर वो सहम गई। जब मैंने तुम्हें कहा कि तुम नाश्ता नीचे आकर करोगी, तो ये ड्रामा लगाने की क्या ज़रूरत है? तुम जानती हो कि मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है। मेरी तबीयत ठीक नहीं, वो धीमी आवाज़ में मिनमिनाने लगी। मुझे इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे 5 मिनट के अंदर अंदर तुम टेबल पर चाहिए हो। अगर तुम ना आई तो मैं खुद तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा। समझ आ रही है मेरी बात? वो उंगली से उसके दिमाग पर जोर डालते बोला, मुझे आपसे शदीद नफरत है। मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। बेसाख्ता उसके मुंह से निकला था। उसकी बात सुनकर वो खुलकर मुस्कुरा दिया। मेरी जान, तुम्हारी नफरत से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे तुमसे बेतहाशा मोहब्बत है और ये मोहब्बत हमेशा कायम रहेगी। चलो अब अच्छे बच्चों की तरह नीचे आओ। उसके बाद तुम्हें मेरे कमरे में आना है, क्योंकि एक बीवी की असल जगह उसके शौहर का कमरा होती है। ये बात तो कम से कम तुम्हें पता होनी चाहिए। अब क्या तुम्हें सब कुछ मुझे समझाना पड़ेगा? वो उससे यूं बातें कर रहा था जैसे उन दोनों में सब कुछ नॉर्मल हो और वो बड़ा होने के नाते हमेशा उसे समझाता रहा हो। मैं आपकी बीवी नहीं हूं और ना ही मैं इस रिश्ते को मानती हूं। क्या 5 साल पहले वाला वाकया भूल गई, या फिर वो वाकया याद दिलाने के लिए मुझे दोबारा से वो सब करना होगा? वो उसकी आंखों में देखते अजीब से अंदाज में बोला, आप मर क्यों नहीं जाते? वो रोते रोते बोली थी, जब तक तुम मेरे 12 बच्चे पैदा नहीं कर लेती तब तक मेरी मौत की दुआएं ना ही करो तो अच्छा है, क्योंकि मैंने एक फुटबॉल टीम बना लेने का ख्वाब देख रखा है और वो ख्वाब तो मैं हर हाल में पूरा करूंगा। वो जानबूझकर उसे तंग कर रहा था। उसकी बातें सुनकर शर्म से इसके गाल लाल हो रहे थे। वाह, मेरी बीवी तो शर्माती भी है। मैं तो समझता था वो सिर्फ गुस्सा करना जानती है। तुमने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया। ये कहकर वो उसकी तरफ बढ़ा
تو وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور ہٹاتے کہنے لگی، میرے قریب نہ ہی آئیں تو اچھا ہے، ورنہ آپ کی جان لے لوں گی۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے دھمکی دے رہی تھی۔ میری بلی اور مجھے ہی میاؤں؟ میری جان، میں تمہارے سارے نخرے اٹھاؤں گا، لیکن پہلے نیچے آ کر ناشتہ کر لو۔ مجھے بہت بھوک لگی ہے اور سر میں بھی شدید درد ہے۔ کل بھی تمہاری وجہ سے پوری رات سو نہیں پایا تھا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ غصے سے پاؤں پٹکنے لگی۔ اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس انسان کے سامنے کمزور نہیں پڑے گی اور نہ ہی اس کے سامنے اب کی بار آنسو بہائے گی، مگر وہ اپنے چھوٹے سے دل کا کیا کرتی جو ذرا ذرا سی بات پر بھر آتا تھا اور اس کی آنکھیں بھی چھلکنے کو تیار ہو جاتی تھی۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ وہ واقعی بہت تنگ آ چکی تھی۔ جب وہ نیچے ناشتہ کرنے گئی تو آمنہ بیگم نے بہت ہی عجیب انداز میں اسے گھورا اور اس کے وجود کو نظر انداز کرتے اپنے بیٹے کو مخاطب کرتے بولی، میں سوچ رہی تھی کہ تمہاری خالہ کی بیٹی سے تمہارا رشتہ طے کر دوں۔ تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ اب تو تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاکستان واپس آ گئے ہو۔ تمہارا باہر جانے کا بھی کوئی پروگرام نہیں۔ تمہیں سیٹل ہونے میں بھی صرف اور صرف 1 مہینہ لگے گا۔ میں ابھی ان سے بات کر لیتی ہوں۔ شادی کی تیاریاں کرتے کرتے 2 مہینے تو ہو ہی جائیں گے۔ انہوں نے جیسے پہلے سے ہی سب کچھ سوچ رکھا تھا۔ امی کی بات سن کر اس نے ایک نظر اپنی بیگم پر ڈالی اور شرارتی انداز میں کہنے لگا، ٹھیک ہے، آپ شادی کی تیاریاں شروع کریں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ نوالا رامین کے گلے میں اٹک گیا۔ وہ زور زور سے کھانسنے لگی۔ وہ جلدی سے اٹھا اور پانی کا گلاس اس کے حوالے کرتے کہنے لگا، تم ٹھیک تو ہو رامین؟ رامین نے اسے غصے سے گھورا تھا، مگر منہ سے کچھ بھی نہ بولی تھی۔ اس کی نظروں نے حاکم خان کو بہت کچھ سمجھا دیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں مسرور ہو گیا تھا۔ اس کے بعد وہ جتنی بھی دیر وہاں بیٹھا رہا، اس نے رامین کو اپنی نظروں کے حصار میں رکھا، اور یہ بات آمنہ بیگم سے بالکل برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ جب وہ ناشتہ کر کے وہاں سے چلی گئی تو وہ غصے سے اپنے بیٹے کی جانب دیکھتے کہنے لگی، ایک طرف تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں کومل کے لیے تمہارا رشتہ مانگوں، اور دوسری طرف تمہارا دل اس 2 ٹکے کی لڑکی سے نہیں بڑھ رہا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، حاکم خان نے ان کی بات کاٹ دی۔ وہ حلق کے بل چلایا، وہ 2 ٹکے کی لڑکی نہیں ہے، بلکہ وہ میری بیوی ہے۔ وہ مکمل طور پر خاموش ہو گئی تھی۔ انہیں امید نہیں تھی کہ حاکم خان کبھی ان سے اس لہجے میں بات کرے گا۔ جب تھوڑی دیر بعد وہ کچھ بولنے کے قابل ہوئیں تو وہ بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے کہنے لگی، کہ تم اپنی ماں سے اس لڑکی کی وجہ سے کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ یہ وہی لڑکی تھی جسے تم بے تحاشا نفرت کرتے تھے اور جس کی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ اسی لڑکی کی وجہ سے تو تم پاکستان چھوڑ کر گئے تھے۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ واپس آ کر تمہاری سوئی ہوئی محبت جاگ جائے گی تو میں اس لڑکی کو جان سے مار دیتی۔ آپ ایسا نہیں کریں گی، اور آپ کیا کوئی انسان ایسا نہیں کرے گا۔ خبردار جو کسی نے اس کی طرف میلی نظر سے دیکھا، میں سب کی آنکھیں نوچ ڈالوں گا۔ وہ میری بیوی ہے اور اب میری بیوی کی حیثیت سے اس گھر میں رہے گی۔ مجھے اگر پتا چلا کہ کسی نے اسے اذیت دینے کی کوشش کی ہے تو اس سے میں خود حساب برابر کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ آمنہ بیگم نے غصے سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور ان سے سوال کرنے لگی، یہ اس کو کیا ہو گیا؟ آپ نے تو کہا تھا کہ یہ اب میری بات مانے گا، مگر یہ تو مجھے سننے کے لیے ہی تیار نہیں۔ ان کی آنکھوں میں فوراً سے آنسو آ گئے۔ سکندر صاحب نے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا، فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ بس اس کے حسن سے متاثر ہو گیا ہے، مگر بہت جلد جب اس کا حسن ڈھل جائے گا تو اس کا دل بھی اٹھ جائے گا۔ اور ایسا کیسے ہوگا؟ وہ تو دن بدن مزید خوبصورت ہوتی جا رہی ہے۔ تم اس چیز کی فکر مت کرو، بلکہ یہ کام مجھ پر چھوڑ دو۔ یہ کہہ کر وہ عجیب سے انداز میں مسکرا دیے، جبکہ وہ بھی ان کی مسکراہٹ کا مفہوم سمجھ چکی تھی۔ دوسری طرف وہ خوفزدہ حالت میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا،
हाकिम खान टेढ़ी खीर है, वो एकदम से इतना अच्छा नहीं हो सकता। इसके पीछे जरूर कोई ना कोई चाल छुपी हुई है। वो इस वक्त खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि हाकिम खान के रवैये से धोखा खाने की कोई जरूरत नहीं। पहले भी तो ऐसा ही हुआ था। इस इंसान ने उसे तसल्ली दी थी कि वो इसकी हिफाजत करेगा और उसे प्यार और मोहब्बत से रखेगा, लेकिन फिर क्या हुआ? उसी इंसान ने इसे रोन डाला और उसे यहां पर अकेला इन जालिमों में छोड़कर चला गया। ये साल उसने कितनी मुश्किल से गुजारे ये सिर्फ वही जानती थी, या फिर उसका खुदा जानता था। मुलाजमा ने दरवाजे पर दस्तक दी तो उसने अंदर आने की इजाजत दे दी। साहब ने यह सूट आपके लिए भेजा है। वो कह रहे हैं कि शाम के वक्त तैयार रहिएगा, वो आपको लेने आएंगे। अपने साहब को बता दो कि मैंने उनके साथ कहीं नहीं जाना। ये कहकर वो गुस्से से उठकर वहां से चली गई। रानी तासुफ से अपनी दोस्त की पुश्त को देख रही थी। इस लड़की का कुछ भी नहीं हो सकता, उसने दिल ही दिल में सोचा। हाकिम खान इस वक्त डेरे से वापस आ रहा था। वहां पर उसकी मुलाकात अपने दोस्तों से हुई थी। उसके अलावा गांव के जितने भी मुअज़्ज़िज़ लोग थे, उसने उन सब लोगों को वहां पर जमा किया था और उनसे गांव के मामलात डिस्कस किए थे। इसके अलावा उनकी जिम्मेदारियां भी उसे समझा दी थी। वो सिर्फ सब लोगों को यही बताना चाहता था कि हाकिम खान जो दिल चाहता है वो करेगा और किसी को भी ये हक नहीं कि वो उसके मामलात में दखल अंदाजी करे। उसे अपने मामलात में दखल अंदाजी करने वाले लोगों से शदीद नफरत थी। वो इस वक्त अपनी प्राडों में बैठा पूरे गांव का चक्कर लगा रहा था। गांव में दूर दूर तक उसकी जमीनें फैली हुई थीं, जिन्हें देखकर उसे एक अजीब सी खुशी और तमानियत का एहसास हो रहा था। अभी कल ही तो वो सरदार बना था और आज उसने अपनी सरदारी का रोब सब लोगों पर डालना शुरू कर दिया। वो हद से ज्यादा खुदसर, जालिम और खुद पसंद इंसान था, जिसे अपने अलावा कभी किसी की जात से दिलचस्पी नहीं रही थी। वो अपने बाप से भी ज्यादा जालिम था, जिसे दूसरों की तकलीफ पहुंचाते खुशी महसूस होती। वो मगरूर शहजादा था, जिसे सिर्फ और सिर्फ खुद से मोहब्बत थी और जो अपने सामने किसी को अहमियत नहीं देता था। अचानक ही पुलिस की गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। उसके माथे पर बल पड़ गए। इन लोगों की इतनी जुर्रत! उसने बेसाख्ता सोचा और तेजी से गाड़ी से नीचे उतर आया। सामने ही इंस्पेक्टर दाऊद खड़ा था, जिसने हाथों में हथकड़ी उठा रखी थी। आपके खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज हुई है, आपको हमारे साथ जेल चलना होगा। दाऊद के इस अंदाज पर पहले तो वो हैरान हुआ और फिर खिलखिलाकर हंसने लगा। तुम पागल तो नहीं हो गए? ये तुम किस तरह की बात कर रहे हो? मुझे लगता है तुमने नशा किया हुआ है। चलो घर जाओ, आराम करो और अपनी नींद पूरी करो। ये कहकर वो वापस पलटने ही लगा था कि दाऊद ने उसका बाजू पकड़ लिया। मैं मजाक नहीं कर रहा और ना ही मैं नशे में हूं। मैं अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहा हूं। आपने जुर्म किया है, आपके खिलाफ एक पर्चा दर्ज हुआ है, जिसका जवाब देने के लिए आपको हमारे साथ चलना होगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे अपने साथ जेल लेकर जाओ? वो हलक के बल चिल्लाया था। दाऊद ने अपने पुलिस एहलकारों को इशारा किया तो वो डरते डरते उसकी तरफ बढ़ने लगे। तुम सब लोगों को मैं अच्छे से देख लूंगा, तुम लोग जानते नहीं हो मुझे। हम लोग आपको अच्छे तरीके से जानते हैं और बहुत जल्द आपको हमारे बारे में भी पता चल जाएगा। दाऊद ये कहकर गाड़ी की अगली सीट पर बैठ गया, जबकि वो पीछे ही पुलिस एहलकारों के साथ मौजूद था। एक एहलकार उसके कानों में सरगोशी करते बोला, साहब जी, ये एक नया पुलिस वाला आया है, बहुत ही ईमानदार है। मैंने इसे आपके बारे में बताया भी था, मगर ये हमारी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। मैं तो इसके साथ आना ही नहीं चाहता था, मगर ये जबरदस्ती हमें अपने साथ लाया है। आप फिक्र मत करें, मैंने आपको पकड़ने से पहले ही बड़े साहब को खबर कर दी थी। वो थोड़ी ही देर में पुलिस स्टेशन पहुंचने वाले होंगे। पुलिस एहलकार की बात सुनकर उसके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। ये तुमने बहुत ही अच्छा किया। रात को मेरी हवेली आना, तुम्हें इसका इनाम दूंगा। वो खुलकर मुस्कुराया था। अब उसे अपने हाथों में लगी हथकड़ियों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो जानता था कि थोड़ी ही देर के बाद क्या तमाशा होने वाला है।
जब वो लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे तो वहां पर पहले से ही उसके कुछ आदमी खड़े थे, जिन्हें देखकर दाऊद हैरान हो गया और अपने एहलकारों से पूछने लगा, ये लोग यहां पर कहां से आ गए? साहब जी, हमें तो नहीं पता, हम तो आपके साथ थे। वही एहलकार बेचारगी से बोला, जबकि ये सब कुछ किया धरा उसी का था। दाऊद ने उसे गुस्से से घूरा मगर कहा कुछ भी नहीं। जब वो अंदर दाखिल हुआ तो उसकी कुर्सी पर बड़ा जागीरदार बैठा था, जो हाकिम खान का बाप था। अरे इंस्पेक्टर साहब आइए, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। वो उसे देखकर अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और छोटे छोटे कदम उठाता उसके पास गया। वो उसके कंधे पर हाथ रखते बोला, मुझे पता चला है आपने मेरे मासूम बेटे को गिरफ्तार किया है। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये तो ज्यादती है। मेरे बेटे ने कोई जुर्म नहीं किया और उसके बावजूद भी आपने उसे हथकड़ी पहना दी। वो जैसे इंस्पेक्टर की कमअक्ली पर अफसोस कर रहा था और उसकी नाअहली पर आंसू बहाने के लिए तैयार बैठा था। आपके बेटे ने जुर्म किया है। इसने एक आदमी को इतनी बुरी तरह से मारा है कि वो मौत के मुंह में पहुंच गया था। अगर उसे बरवक्त अस्पताल ना लेकर जाया जाता तो वो मर जाता। इंस्पेक्टर दाऊद ने जैसे उसे कुछ एहसास दिलाने की कोशिश की, मगर उनके ज़मीर तो मर चुके थे और उन्हें किसी भी चीज़ का कोई एहसास नहीं था। मुस्कुराते हुए कहने लगे, अगर उसके घर वाले मेरे बेटे को माफ़ करने के लिए तैयार हो जाएं, क्या तब भी आप इसे गिरफ्तार रखेंगे? उसके लहजे में कमीनगी को महसूस करते दाऊद ने गुस्से से अपने दांत पीसे थे। और ये शकूर, ज़रा फरहान के घर वालों को तो बुलाओ। उसकी माँ कब से बाहर बैठी है, इंस्पेक्टर साहब का इंतज़ार कर रही है। इंस्पेक्टर साहब, किसी को इंतज़ार करवाना बिल्कुल अच्छी बात नहीं। वो तासुफ से अपने सामने खड़े दाऊद को देखते बोला, तुम्हारा बाप एक बहुत बड़ा सियासतदान है। सिर्फ इसी वजह से तुम्हें कुछ नहीं कह रहे, वरना तुम्हें एक ऐसी जगह पहुंचा देते जहां से तुम्हारी वापसी हमेशा हमेशा के लिए नामुमकिन हो जाती। तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूं, अब अगर तुमने हमारे रास्ते में आने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो उसे धमकी देता, उसकी आंखों में आंखें डालता वहां से जा चुका था। थोड़ी ही देर के बाद वो औरत वहां पर आई और कांपती हुई आवाज में बोली, साहब जी, वो जो कुछ भी हुआ था गलत फहमी की बुनियाद पर हुआ था। दरअसल हमारे बेटे को हाकिम साहब ने नहीं बल्कि किसी और शख्स ने मारा था। मैं चेहरा ठीक से देख नहीं पाई, इसलिए मुझसे पहचानना मुश्किल हो गया। वो टूटे फूटे अल्फाज में अपनी बात समझाने की कोशिश कर रही थी। साफ जाहिर हो रहा था कि किसी ने उसे ज़बरदस्ती ये सब कुछ कहने पर मजबूर किया है। दाऊद कुछ भी ना बोला और उसे इशारे से वहां से चले जाने का कहा। हाकिम की हथकड़ी भी खुल चुकी थी। अब वो दाऊद के टेबल के पास गया और उस पर झुकते हुए नफरत भरे अंदाज में कहने लगा, अगर तो तुम्हें यह लगता है कि तुम मेरी बराबरी कर सकते हो तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। तुम यहाँ एक मामूली से इंस्पेक्टर हो, जबकि मैं इस पूरे इलाके का सरदार हूँ। हर किसी पर मेरी हुकूमत है, हर कोई मेरे मातहत काम करता है। मैं जिसके साथ चाहे जैसा सलूक कर सकता हूँ। मैं तुम जैसे 2 टके के लोगों को बिल्कुल जवाब दे नहीं हूँ। ये कहकर वो गुस्से से वहां से निकल चुका था, जबकि दूसरी तरफ दाऊद का भी तैश से बुरा हाल था। वो इस गांव में इसीलिए तो आया था कि यहां पर होने वाली नाइंसाफी को ख़त्म कर दे। शाम तकरीबन 5 बजे का वक्त था और इस दौरान न जाने कितने केस उसके पास आ चुके थे। वो सारे केस हवेली में काम करने वाले मुलाजमीन के थे, जिन्हें अपने साहब की तरफ से आज़ादी मिली हुई थी और वो उसी आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते अवाम को तकलीफ़ पहुंचा रहे थे। उसने खुद हवेली जाकर अब सिकंदर से इस बारे में बात करने का फ़ैसला किया। अभी उसकी जीप उस तरफ जाने वाली सड़क पर रवां दवा थी कि अचानक एक लड़की उसके सामने आकर रुकी। उसने जीप को जल्दी से ब्रेक लगाई। बरवक्त ब्रेक लगने की वजह से वो लड़की बच गई थी, मगर खौफ की वजह से नीचे ज़मीन पर गिर गई। दाऊद जल्दी से अपनी गाड़ी से नीचे उतरा, गुस्से से उसके पास गया। ये क्या तरीका है? अगर मरने का बहुत शौक है तो किसी और की गाड़ी के सामने आकर मरो। मुझ पर क्यों इल्ज़ाम लगाना चाहती हो? वो बहुत गुस्से में था। उसे इस लड़की की हरकत ने मजीद तैश दिला दिया था।
رامی نے پہلے حیرانگی سے اور پھر غصے سے اس پولیس والے کو دیکھا۔ کیا آپ کو لڑکیوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں؟ اس کی باتوں کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے وہ اس سے سوال کر رہی تھی۔ داؤد کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ ایک تو وہ یوں اچانک ایک دم سے اس کی گاڑی کے سامنے آ گئی تھی اور اب اسی پر روک جما رہی تھی۔ محترمہ دیکھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، رامین نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگی، مجھے پتا ہے کہ خوبصورت لڑکی دیکھتے نہیں ہے اور دماغ پہلے خراب ہو جاتا ہے۔ یہ سب صرف مجھ سے بات کرنے کے بہانے ہیں، مگر میری ایک بات کان کھول کر سن لو، مجھے آپ کی ذات سے کوئی دلچسپی نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، داؤد نے اس کی بات کاٹی۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ خوبصورت نہیں ہیں، دوسری بات یہ کہ مجھے آپ جیسی عورتوں سے کوئی دلچسپی نہیں، تو بہتر ہے اپنی یہ غلط فہمی اس چھوٹے سے دماغ سے نکال دیں اور دوبارہ کبھی بھی میری گاڑی کے سامنے اس طرح سے آنے کی کوشش مت کیجیے گا، ورنہ کیا؟ وہ جلدی سے چمٹ کر بولی۔ اس نے ابھی تک اپنا چہرہ نقاب کے ذریعے چھپایا ہوا تھا۔ تھوڑا تھوڑا اندھیرا پھیلا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ اسے ٹھیک طرح سے دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ ورنہ تمہارے گھر جا کر تمہارے والدین کو تمہاری حرکتوں کے بارے میں بتا دوں گا۔ خیر مجھے بتاؤ تو صحیح کہ تم ہو کون؟ اس سوال پر وہ چونک گئی۔ اس کی ہرنی جیسی آنکھیں پھیل گئیں اور ان میں خوف اتر آیا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ کھل کر مسکرا دیا۔ اپنے خاندان والوں کے بارے میں تم مجھے نہیں بتا سکتی اور آئی ہے مجھے دھمکیاں دینے۔ چلو اب جلدی سے میرے راستے سے ہٹو اور مجھے جانے دو۔ وہ اس کے سامنے سے ہٹ نہیں لگی تھی کہ اسے ٹھوکر لگی۔ دوپٹہ اس کے سر سے الگ ہو کر زمین بوس ہو گیا۔ وہ اس وقت اس کے سامنے بے حجاب کھڑی تھی۔ صرف اور صرف ایک نظر کا کمال تھا اور داؤد کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ تو وہی لڑکی تھی جسے وہ ایک لمبے عرصے سے تلاش کر رہا تھا۔ اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ جس کو وہ شہر کے چپے چپے میں ڈھونڈ رہا تھا وہ اس چھوٹے سے گاؤں میں موجود تھی اور آج اس کے بہت ہی پاس کھڑی تھی۔ کیا قسمت ہم پر اس طرح سے بھی مہربان ہو سکتی ہے؟ اس نے بے ساختہ خود سے سوال کیا تھا اور پھر اسے اپنے سوال کا جواب بھی مل گیا۔ قسمت اس پر مہربان ہو چکی تھی۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ میں نے تمہیں کہاں پر اور کتنا زیادہ تلاش کیا؟ وہ اسے اپنی آنکھوں کے راستے اپنے دل میں اتارتے بولا۔ ابھی تک وہ اس کے بازو پکڑے ہوئے تھا۔ رامین جلدی سے ہوش کی دنیا میں آئی اور اپنا بازو ایک جھٹکے سے چھڑاتے ہوئے کہنے لگی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ لگتا ہے آپ میں حیا ختم ہو گئی ہے۔ وہ کافی چڑچڑی معلوم ہو رہی تھی اور اس کا لہجہ بھی گستاخانہ تھا، مگر وہ فی الحال اس کے لہجے پر غور نہیں کر رہا تھا۔ وہ تو اپنی قسمت پر رشک کر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ داؤد خانم وہاں پر اکیلا کھڑا تھا۔ اس نے حویلی جانے کا بھی ارادہ ملتوی کر دیا۔ اس کا موڈ بہت اچھا تھا اور وہ سکندر خان سے بات کر کے اپنا موڈ کا بیڑا غرق نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جب وہ واپس اپنے چھوٹے سے مکان میں گیا تو پولیس اہلکار پہلے ہی دروازے میں کھڑا تھا۔ جی، آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا۔ میں کب سے کھڑا آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ تم تو ایسی باتیں کر رہے ہو جیسے میں کوئی لڑکی ہوں۔ تمہیں میرے بارے میں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ ارے میں کیسے آپ کے بارے میں خوفزدہ نہ ہوں؟ آپ ہمیشہ ہی ان جاگیرداروں کے خلاف جاتے ہیں۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ وہ کتنے طاقتور لوگ ہیں۔ وہ آپ کو جان سے بھی مار سکتے ہیں اور کسی کو بھی اس بارے میں کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ اگر وہ خطرناک ہے تو میں تمہاری سوچ سے بھی زیادہ اور ان کی اوقات سے بھی زیادہ خطرناک ہوں۔ ابھی وہ لوگ میرے خاندان سے اور میرے باپ سے ٹھیک طرح سے واقف نہیں ہیں، اور جتنا وہ میرے بارے میں جانتے ہیں اس کے بعد ان میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ میرے گریبان پر ہاتھ ڈال سکیں یا پھر مجھے کسی قسم کا نقصان پہنچا سکیں۔ داؤد خان کے لہجے میں نہ چاہتے ہوئے بھی غرور آ گیا تھا، اور یہ سب کچھ اس کو اپنے باپ کا ہی دیا ہوا تھا جس کی بنیاد پر وہ یوں اکڑ کر چلتا تھا۔ میں نے تم سے ایک لڑکی کے بارے میں سوال کرنا تھا۔
رات کے وقت جب وہ دونوں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے تو داؤد کے دل میں چلنے والی بات اس کی زبان پر آ گئی۔ ارے انسپیکٹر صاحب، خیریت تو ہے؟ یہاں پر آپ لوگوں کو انصاف دلانے آئے ہیں، مگر خود اپنے لیے لڑکی ڈھونڈ لی۔ فضول مت بولو، میں نے اپنے لیے نہیں ڈھونڈی، بس ویسے ہی پوچھنا چاہ رہا تھا۔ اس نے جیسے بات چینج کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اس کے لہجے کی کپ کپاہٹ اور اس کا نگاہیں چرانا، یہ سب تو کسی اور طرف اشارہ کر رہے تھے۔ شکور نے بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ پر قابو پایا۔ جی صاحب جی، آپ مجھ سے پوچھیں کہ وہ لڑکی کون ہے؟ جو تصویر داؤد خان نے 1 سال پہلے کھینچی تھی، وہ تصویر اب اس کے سامنے رکھ دی۔ شکور کو لگا کہ زمین اس کے قدموں کے نیچے سے نکل گئی ہو۔ آپ اس لڑکی کے بارے میں بھول جائیں۔ آپ مجھ سے وعدہ کریں، آپ دوبارہ کبھی اس لڑکی کا تذکرہ نہیں کریں گے اور نہ ہی کسی اور سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھیں گے۔ وہ بہت خوفزدہ نظر آنے لگا تھا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم تو ایسے برتاؤ کر رہے ہو جیسے میں نے تمہیں لڑکی نہیں کوئی بھوت دکھا دیا ہو۔ صاحب جی، یہ بھوت سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ میں آپ کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ جتنا عرصہ میں آپ کے ساتھ رہا ہوں، میں آپ کو پہچان گیا ہوں۔ آپ بہت سیدھے سادے انسان ہیں۔ جو کچھ آپ کے دل میں ہوتا ہے وہی آپ کی زبان پر اور آپ کے چہرے سے عیاں ہو جاتا ہے۔ مجھے پتا ہے آپ اس لڑکی کی ذات میں دلچسپی لینے لگے ہیں، لیکن یہ آپ کی دسترس سے باہر ہے۔ یہ حاکم خان کی منکوہا ہے جس سے بہت جلد وہ شادی کرنے والا ہے۔ تم نے تو مجھے کہا تھا کہ اسے اپنی منکوہا کی ذات میں کوئی دلچسپی نہیں، وہ شہر کی ایک لڑکی کو بیاہ کر لائے گا۔ داؤد کو یوں لگا تھا جیسے کسی نے اس کے خوابوں کا قتل کر دیا ہو۔ اسے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ سنا تو میں نے بھی تھا، میری بیوی بھی اسی حویلی میں کام کرتی ہے، وہی مجھے اس بارے میں بتاتی رہتی ہے۔ اس کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ رامین بیگم بھی ان کی ذات میں دلچسپی نہیں لیتی، بلکہ وہ ان سے حد سے زیادہ نفرت کرتی ہیں۔ ان کا بس چلے تو وہ حویلی سے بھاگ جائیں، مگر وہ ان کی باپ بیٹے کی وجہ سے مجبور ہو جاتی ہیں۔ بہت پہلے ان کے والدین نے ان کا سودا سکندر خان کے بیٹے سے کر دیا تھا، اور آج تک وہ اس سودے کو ہی بھگت رہی ہیں۔ مجھے تو کبھی کبھار ان پر بڑا ترس آتا ہے صاحب جی۔ شکور نے بات مکمل کی، اس کے ساتھ ہی افسوس کرنے لگا، جبکہ وہ بھی ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ میں خود اس لڑکی سے اس بارے میں پوچھوں گا۔ اگر تو اسے اس شخص میں محبت ہے تو میں اس کا پیچھا چھوڑ دوں گا، لیکن اگر اسے اس شخص سے کوئی دلچسپی نہیں اور وہ اسے جان چھڑوانا چاہتی ہے تو میں اس کا ساتھ دوں گا۔ اس نے دل ہی دل میں جیسے خود کو راضی کیا تھا اور خود کو اپنے فیصلے پر قائم رکھنے کی تلقین کی تھی، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ قسمت میں کیا لکھا ہے اور ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ رامین کالی چادر میں اپنا منہ چھپائے حویلی کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ جب حاکم خان کی نظر اس پر پڑی تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ اس کے سر پر کھڑا ہو گیا اور اس سے سوال کرنے لگا، تم اس وقت کہاں سے آ رہی ہو؟ رامین نے ایک گہری سانس لی۔ وہ اس کے پہلو سے ہو کر گزرنے ہی لگی تھی کہ حاکم نے اس کا بازو زور سے پکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا، میں نے تم سے سوال کیا ہے، تم کہاں سے آ رہی ہو؟ کیا تمہیں میری آواز سنائی نہیں دے رہی؟ میں نے سن لیا ہے، مگر میں آپ کو جواب دینے کی پابند نہیں ہوں۔ بیوی ہو تم میری، میں تم سے جو کچھ پوچھوں گا تمہیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ مجھے آپ کی دھمکیوں سے کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ میں آپ کا سب سے گھٹیا روپ دیکھ چکی ہوں۔ میں نے آپ کو اس وقت دیکھا ہے جب آپ انسانیت کی درجے سے گر گئے تھے، اور میں نہیں سوچتی کہ کوئی انسان اس سے زیادہ گر سکتا ہے۔ مجھے اب آپ سے کوئی خوف نہیں ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے نفرت بھرے انداز میں بولی، تم ہوش میں تو ہو؟ یہ مجھ سے کس انداز میں بات کر رہی ہو؟ پہلے تو وہ اس کی آدھی رات کے وقت داخل ہونے پر غصہ کر رہا تھا، اور اب اس کے لب و لہجے پر اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ جی، میں اپنے پورے ہوش و حواس میں ہوں۔ بہت جلد آپ سے طلاق۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، اس کا ہاتھ اٹھا اور رامین کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ دوبارہ اگر یہ لفظ اپنی زبان سے نکالا
तो तुम्हें अभी और इसी वक्त यहीं पर दफन कर दूंगा। तुम्हारे घर वालों को कह दूंगा कि अपने किसी आशिक के साथ भाग गई थी। वो इस वक्त जमीन पर पड़ी हुई थी। उसका होंठ फट गया था जहां से खून बह रहा था, मगर हाकिम खान को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसके जहन में तो उस लफ्ज की बाज गश्त गूंज रही थी जिसने उसके दिल को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। बिलाशुबा 5 साल पहले वो उसे छोड़कर चला गया था। 5 साल पहले उसने इस लड़की पर जुल्म किया था, मगर ये 5 साल उसने जितनी तकलीफ में गुजारे थे ये बात सिर्फ वही जानता था। एक एक लम्हा उसने रामीन को याद किया था और अपने रब से अपने गुनाह की माफ़ी मांगी थी। उसने रामीन से भी माफ़ी मांगने की कोशिश की थी, मगर आमना बेगम ने कभी उन दोनों का राब्ता ही ना होने दिया और हर बार अल्फाज उसके अंदर ही दम तोड़ देते थे। अभी वो सब कुछ ठीक करने के लिए पाकिस्तान आया था, मगर अभी उसकी बेगम के तेवर ही ठीक नहीं हो रहे थे। रात तकरीबन 8 बजे का वक्त था। सब कज़न लाउंज में बैठे एक दूसरे से बात करने में मसरूफ थे। रामीन भी थोड़े ही फासले पर अपनी कज़न जवेरिया के साथ बैठी नए आने वाले पुलिस ऑफिसर के बारे में बात कर रही थी। मैंने तो सुना है वो बहुत ईमानदार इंसान है। मुझे ईमानदार लोग बहुत पसंद है और ये लोग अल्लाह ताला के भी करीब होते हैं। वो जो थोड़ी देर पहले अंदर दाखिल हुआ था रामीन की बात सुनकर चौंक गया और उसके साथ ही वो अपना मुहासबा करने लगा। क्या वो ईमानदार था? जवाब नफी में आया। मुझे जालिम लोगों से शदीद नफरत है। मुझे उनसे घिन महसूस होती है और अजीब सी कोफ्त का एहसास होता है। मेरा बस चले तो सारे जालिम लोगों को एक ही लाइन में खड़ा करके गोली मार दूं। काश मुझे कभी मौका मिल सके, वो ठंडी आ भरते हुए बोली। इससे ज्यादा वो सुन नहीं पाया था। वो उससे थोड़े ही फासले पर जाकर बैठ गया। क्या बातें हो रही हैं? वो वहां से खामोशी से उठकर चली गई। यह अब उसके मुंह पर तमाचा था। जवेरिया ने मुस्कुराते अपने भाई के चेहरे की तरफ देखा जो इस वक्त गुस्से से लाल हो रहा था। भाभी को मनाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आपको उनके लिए कुछ खास करना पड़ेगा। अभी कल रात उसने अपने भाई से तफसील से इस बारे में बात की थी और अपने भाई को समझाया था कि माजी में उसने जो कुछ भी किया वो बहुत गलत था और जिसके असरात उसकी बीवी पर एक लंबे अरसे तक रहे। वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही थी। अभी कुछ सालों पहले ही वो जिंदगी की तरफ वापस लौटी थी। इसी वजह से वो उनसे नाराज़ है और ये नाराज़गी ज़्यादा अरसे तक भी चल सकती है। आपको सब्र से काम लेना होगा। मगर आज शाम ही गुस्से की वजह से वो उस पर हाथ उठा चुका था। वो उसके कमरे में गया तो अंदर से लॉक था। दरवाज़ा खोलो, मैंने तुमसे बात करनी है। मैंने आपसे कोई बात नहीं करनी, मेहरबानी करके यहां से चले जाएं। रामीन इस वक्त फिर से रो रही थी। उसे अपने घर वालों की शिद्दत से याद आ रही थी। वो छोटी सी थी जब उसके वालिदैन का इंतकाल हो गया था। उसके चचा जान ने उसकी परवरिश की थी, मगर जब वो 14 साल की हुई तो उसका रिश्ता उसके ताया के बेटे हाकिम खान से हो गया। ये रिश्ता भी सिर्फ और सिर्फ जायदाद की वजह से हुआ था, चूंकि रामीन के नाम एक बहुत बड़ी जायदाद थी और सिकंदर खान बहुत सारी जायदाद अपने नाम लगवाना चाहता था। उसके चचा का कोई बेटा नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने भी वावेला नहीं मचाया और खामोशी से वो लड़की अपने बड़े भाई के हवाले कर दी। हाकिम खान शुरू में उसे बहुत नापसंद करता था। रामीन को देखकर ही उसका दिमाग गुस्से से घूम जाता था। वो कम उम्र और छोटी सी लड़की थी। वो उसे अपनी बीवी मानने के लिए तैयार ही नहीं था, मगर जैसे ही थोड़ा सा वक्त गुजरा तो वो ना चाहते हुए भी उसके हुस्न से मुतासिर हो गया और फिर एक दिन जज्बात में आकर उस पर अपना हक साबित कर दिया। वो मासूम सी लड़की अभी संभल नहीं पाई थी कि वो उसे जहनी तकलीफ देने लगा और फिर थोड़े ही अरसे के बाद उसे छोड़कर आला तालीम हासिल करने दूसरे मुल्क चला गया। पीछे आमना बेगम ने उस पर हर तरह का जुल्म किया था। सिकंदर खान अपनी बेगम को मना करते थे, मगर मजाल है जो वो किसी की बात सुने। और 5 साल के बाद जब वो वापस आया तो वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुका था। उसके दिल में रामीन की मोहब्बत जड़ें पकड़ चुकी थी।
वो उसे अपने दिल के बहुत ही करीब मालूम होती थी और अब वो उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। लेकिन इस बार रामीन उस पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं थी। नए सिरे से किसी पर एतबार करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। इस बात का एहसास रामीन को पहली बार हो रहा था। दाऊद इस वक्त अपने कमरे में लेटा हुआ था। उसकी नजरों के सामने उस हसीना का चेहरा घूम रहा था जिसे कुछ ही टाइम पहले उसने शहर में देखा था। उसकी बहन की सालगिरह थी। वो उसके लिए तोहफा लेने मॉल गया था, जहां पर वो एक लड़की से टकरा गया। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि रामीन थी। वो पहली ही नज़र में उस पर फिदा हो गया था। बाद में वो उस लड़की को तलाश करता रहा मगर वो उसे कहीं भी ना मिली और अब 1 साल के बाद वो उसे उस गांव में दिखाई दी थी, मगर किसी और की बीवी की हैसियत से। जब से रामीन को एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर के बारे में पता चला, तब से वो जवेरिया के पीछे पड़ी थी कि एक बार मेरी उससे बात कराओ, मगर जवेरिया उसकी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। तंग आकर वो रानी के पास चली गई और फिर आज वो रानी के साथ उससे मिलने जा रही थी। उसने पुलिस वाले को कुछ बातों के बारे में बताना था और वो जानती थी कि अगर वो उसे ये राज बताने में कामयाब हो गई तो बहुत सारे लोगों को इंसाफ मिल जाएगा, जिसमें उसकी अपनी भी जात शामिल थी। वो नदी किनारे खड़ी थी जब उसे दूर से ही वही इंसान आता दिखाई दिया जिसकी गाड़ी से वो टकराते टकराते बची थी। इससे पहले कि वो गुस्सा करती, रानी तेजी से बोली, बेगम साहिबा, ये वही पुलिस वाला है। बात करते करते वो खामोश हो गई। तुम यहां से जाओ, मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। उसने रानी को वहां से जाने का इशारा किया। अब वो मुकम्मल तौर पर इस इंसान की तरफ मुतवज्जो हो गई। मुझे लगता है हम एक बार पहले भी मिल चुके हैं। दाऊद ने जैसे उसे कुछ याद करवाने की कोशिश की थी। मैं जानती हूं, मेरी याददाश्त कमजोर नहीं है। मैंने आपको शॉपिंग मॉल में देखा था और फिर दोबारा उसके बाद आपकी गाड़ी से टकराते बची थी। मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। मुझे पता चला है कि आप बहुत ईमानदार हैं और हमारे जागीरदाराना निज़ाम को नापसंद करते हैं। जी, ऐसी ही बात है। मेरा बस चले तो बहुत जल्द मैं यहाँ का निज़ाम ख़त्म कर दूँ। अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो इस सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान का हाथ है और वो है सिकंदर खान, जो कि मेरे चचा हैं। मैं चाहती हूं आप उनको गिरफ्तार करें और उनको उनके किए की सजा दिलवाएं, मगर मेरे पास कोई सबूत नहीं है और सबूत के बगैर मैं कोई काम नहीं कर सकता। इस बारे में मोहतरमा आप भी बहुत अच्छे से जानती हैं। सबूत की फिक्र मत करें इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको सबूत देने पर तैयार हूं, लेकिन आपको एक यकीन दहानी करानी होगी कि आप मेरा नाम सामने नहीं आने देंगे। दाऊद चंद लम्हों तक गौर से उसके चेहरे को देखता रहा। तुम क्यों अपने ताया के खिलाफ जा रही हो? क्योंकि यही वो इंसान है जिसने मेरे माँ बाप को जान से मारा था। बात करते करते उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। जिस दिन वो हवेली आई थी उसी दिन वो सच जान गई थी। उसने अपने ताया को ताई जान से बातें करते सुना था। वो उनको बता रहे थे कि ये सारा खेल उन्होंने जानबूझ कर खेला है ताकि अपने भाई को रास्ते से हटाकर उसकी सारी जायदाद और ज़मीनों पर कब्जा कर सके। उसी दिन उसने फैसला कर लिया था कि वो अपने ताया जान से ज़रूर इंतकाम लेगी, और अगर मैंने आपके साथ गद्दारी कर दी तो? दाऊद ने गौर से उसके चेहरे की तरफ देखते कहा तो वो फीके से अंदाज में मुस्कुराते हुए कहने लगी, तो हवेली वाले मुझे ज़मीन के अंदर गाड़ देंगे। इससे बढ़कर वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और मुझे मौत से खौफ महसूस नहीं होता। उसके लहजे में एक अजीब सी चट्टान जैसी सख्ती थी जिसे जानकर वो खुद भी एक लम्हे के लिए कांप गया था। तुम मुझे वो सबूत दिखाओ जो तुम्हारे पास हैं, दाऊद ने कहा तो उसने जल्दी से अपनी जेब में से एक USB निकाली। इसमें वो तमाम वीडियोस हैं और वो तमाम रिकॉर्डिंग्स हैं जिसमें वो अपनी गैर कानूनी सरगर्मियों का जिक्र कर रहे हैं। ये सारी रिकॉर्डिंग्स मैं पिछले 5 सालों से इकट्ठी कर रही हूँ और अभी भी वो एक लड़कियों का ट्रक गैर कानूनी तरीके से
दूसरे मुल्क स्मगल करने वाले हैं। मैं नहीं चाहती कि मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो, इसीलिए आपके पास आई हूं। मुझे यकीन है आप उन मासूम लड़कियों की जिंदगी बचा लेंगे। अब मैं यहां से चलती हूं। अगर किसी ने देख लिया तो मेरे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। यूएसबी उसके हवाले करते वो तेजी से वहां से निकल आई थी। उसका दिल कांप रहा था। एक लम्हे के लिए उसे खौफ महसूस हो रहा था कि यूं किसी अजनबी पर यकीन कर लेना भी ठीक नहीं है, मगर उसके पास इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। वो अपने तायाजान का चेहरा मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जब भी वो उन्हें देखती तो माजी के जख्म फिर से ताज़ा हो जाते थे। हवेली के अंदर दाखिल हुई तो उसका सामना सबसे पहले हाकिम खान से हुआ था। अगर मैं तुम्हारे लिए ईमानदार बन जाऊं और अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ दूं तो क्या तुम मुझे अपनाने के लिए तैयार हो जाओगी? उसने एक उम्मीद से पूछा था। जिस दिन ऐसा करने में तुम कामयाब हो गए, समझ जाना मैं तुम्हारी हो गई। ये कहकर वो वहां से चली गई और हाकिम खान ने उस दिन खुद से वादा किया कि वो अपनी अना और गरूर को ख़त्म कर देगा। वो बिल्कुल वैसा ही इंसान बन जाएगा जैसा इस लड़की को पसंद है। वो उससे मोहब्बत करने लगा था और मोहब्बत में खुद को तब्दील तो कर ही सकता था। तकरीबन 2 दिन गुजर चुके थे, मगर दाऊद की तरफ से अभी तक किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। वो मायूस हो गई थी और उसे अपनी मेहनत भी ज़ाया होती मालूम हो रही थी, जब उसे अचानक ही नीचे से शोर की आवाज़ सुनाई देने लगी। पुलिस की एक बहुत भारी नफरी वहां सिकंदर खान को गिरफ्तार करने आई थी। वो हैरान और परेशान था कि ऐसा क्या हो गया कि शहर से पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए आ गई और डीएसपी खुद उन्हें गिरफ्तार करने आया है। जब उन्हें सबूतों के बारे में पता चला तो वो गुस्से से ताव खाकर रह गए। वो अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे कि आखिर ये गद्दारी किसने की है। हाकिम खान का गुस्से से बुरा हाल था। अपने बाप को जेल में देखना उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। उसने उन्हें छुड़वाने की हर मुमकिन कोशिश कर ली, मगर कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि सबूत मजबूत थे और यूं सिकंदर खान को सजाए मौत हो गई। वो दिन रामीन की जिंदगी का सबसे खुशगवार दिन था। उस दिन वो अपना बदला लेने में कामयाब हो गई थी। सब लोग नीचे बैठे सोग मना रहे थे, जबकि वो अपने कमरे में बैठी मुस्कुरा रही थी और अपने बाप से बातें करते कह रही थी, देखिए बाबा जान, मैंने आपका बदला ले लिया। मैंने आपसे किया हुआ वादा पूरा कर दिखाया है। मुझे आज लग रहा है कि मेरे दिल से एक बहुत भारी बोझ हट गया है। एक अजीब सा सुकून मिल गया है, जिस सुकून की तलाश में मैं बरसों से बेचैन और दरबदर फिर रही थी। वो सुकून मेरी रूह और मेरे वजूद में सरायत कर गया है। वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि उसका मोबाइल बजा। वो अच्छे से जानती थी कि किसका फ़ोन होगा। उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक दाऊद का फ़ोन था। मैंने आपसे किया हुआ वादा पूरा कर दिया। उसके भी वही अल्फाज थे। उन्हें सुनकर वो मुस्कुरा दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं ये एहसान कैसे उतारूं। एहसान तो आपने मुझ पर किया है, जो आपने एक जालिम इंसान को पकड़ने में मेरी मदद की है। अब आप क्या करेंगे? क्या आप उन लोगों को छोड़ देंगे? अगर मेरी माने तो आप हाकिम खान से दूर हो जाएं, क्योंकि वो भी मुझे काबिल एतबार नहीं लगता। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता, रामीन ने उसकी बात काटी और गुस्से से कहा, आप भूल रहे हैं कि आप मेरे शौहर के बारे में बात कर रहे हैं। दाऊद को जैसे सांप सो गया। वो तो समझ रहा था वो अपने शौहर से नफरत करती है, मगर यहां तो कहानी ही बदली हुई थी। आप उनसे नफरत? मैं उनसे नफरत नहीं करती, बल्कि मुझे अपने शौहर से बहुत मोहब्बत है। माजी में कुछ ऐसे वाक़यात हुए थे जिसकी बुनियाद पर हम दोनों में नाराज़गी हो गई थी, लेकिन अब वो नाराज़गी और वो गलत फहमी दूर हो चुकी है। मुझे उनसे किसी भी किस्म का अब कोई शिकवा नहीं और मैं उनके साथ बहुत खुश हूं। आपने मेरी मदद की, मैंने आपकी मदद की, हिसाब बराबर हो गया और अब मुझे नहीं लगता कि हम दोनों को मज़ीद राब्ते की ज़रूरत पड़ेगी। उम्मीद है कि आप मेरी बात समझेंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ कहकर उसने कॉल काट दी थी
आंसू चुपके से उसकी आंखों से टूट कर गिरा था और बिस्तर की चादर में गुम हो गया था। ये फैसला उसने बहुत सोच समझ कर किया था। वो वाकई हाकिम खान में तब्दीली महसूस कर रही थी, और सबसे बढ़कर ये कि वो उसके निकाह में थी और उसकी बीवी थी। वो कैसे अपने शौहर से गद्दारी कर सकती थी और उसकी मौजूदगी में किसी गैर आदमी से इश्क की पींगे बढ़ा सकती थी। कुछ ही अरसे के बाद लोग सिकंदर खान को मुकम्मल तौर पर भूल चुके थे। हाकिम खान ने भी सरदारी से अपना हाथ खींच लिया था और अपने बिजनेस की तरफ तवज्जो दी थी। कुछ ही अरसे के बाद उसका शुमार शहर के मशहूर तरीन बिजनेसमैन में होने लगा। गांव में अब किसी पर कोई जुल्म नहीं होता था, कोई किसी का हक नहीं खाता था, क्योंकि जुल्म करने वाला सिकंदर खान अब दुनिया से चल बसा था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।